नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आए डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। आज रानीगंज चौराहे के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर हुई घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि रोड में भैंस के आ जाने से यह दुर्घटना हुई। भैंस के सामने आने पर ट्रक ने ब्रेक मारा। उसके ठीक पीछे एक बुलेरो थी, उसने भी ब्रेक मारी, लेकिन बुलेरो के पीछे एक पैसेंजर बस इस दौरान अपना नियंत्रण खो बैठी। बस ने पहले बुलेरो को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। यह बस कलाकारों से भरी थी जो मेदिनीपुर से बांकुड़ा की ओर जा रही थी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं बस चालक फरार बताया जा रहा है। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? হ্যাঁ, বাসের মধ্যে ছিলাম। কিরকম কি হয়েছিল? কি হয়েছিল বুঝতে পারছি না। আমরা বাসের মধ্যে শুয়েছিলাম, ঠিক আছে। এবার হঠাৎ দেখি বাসটায় টলমলো খেয়ে এখানে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার নেমে দেখছি যে মোষ ওখানে পড়ে আছে, মোষের গায়ে লেগে লাগতে গিয়ে বেঁচে গেছে। এই গাড়িটা নেমে দেখছি এর ওপরে ওঠা। তো আপনারা কতজন যাত্রী ছিলেন বাসে? 25 জন। কোথায় আপনারা কি সবাই যাত্রা শিল্পী নাকি? হ্যাঁ, সবাই যাত্রা শিল্পী, তার মধ্যে থেকে কাজের লোক ছিল আচ্ছা 4 জন। আচ্ছা, সব মিলিয়ে 25 জন ছিলেন। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে। তো আপনার কি হয়েছিল ঘটনা দেখতে পাননি? না, সবাই ঘুমাচ্ছিলাম তো ও। বুঝতে পারিনি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আমরা মেদিনীপুর থেকে শো করে আসছি। ও, মেদিনীপুরে শো ছিল? হ্যাঁ, মানে মেদিনীপুরে কোথায়? মেদিনীপুরে আপনার চণ্ডীপুর আছে, চণ্ডীপুরের আগে। আচ্ছা, তারপর কি আজকেও শো আছে নাকি? হ্যাঁ, আজকেও শো আছে। এই কোথায় শো আছে? আজকে বাঁকুড়া আছে। বাঁকুড়া কোথায়? বাঁকুড়া কোন জায়গা গো আমি বাবু? বীরভূমে আছে। বীরভূমে কোথায়? সেটা জানা নেই, ম্যানেজার বাবু। ও, আমাদের ম্যানেজার। এটা আপনাদের কোথাকার যাত্রা দল? হ্যাঁ, যাত্রা দলটা কোথাকার? কলকাতার নন্দীগ্রাম থেকে। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম নিশা নস্কর। আপনি যাত্রা শিল্পী? হ্যাঁ। বলবেন। বিষয়টা আমরা যাত্রা করতে এসেছিলাম, গত রাত্রে যাত্রা করেছি। কোথায় করেছিলেন কালকে? গত রাত্রে আমরা মেদিনীপুরে শো করেছিলাম। আসছে তো রাস্তায় আমরা এখন আটকে পড়ে গেছি। আমাদের যাত্রা আছে খয়রাসোল, বীরভূম খয়রাসোল। তো ড্রাইভার এখন আগে থেকে গাড়ি চালিয়েছিল, ড্রাইভার কী করেছে না করে জানি না। বর্তমানে আমরা রাস্তায় আটকে পড়ে গেছি, ড্রাইভার এখন নাই। এই অবস্থা আমরা প্রোগ্রাম কী করে করবো, কুয়াশার মধ্যে পড়ছি আমরা। কোথাকার যাত্রা বলা এটা? এটা কলকাতা যাত্রা বলা। আচ্ছা, তো কি এখন কি আপনাদের বাসের চালক কিংবা কেউ নেই আপনার? এখন বর্তমান বাসের চালককে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা সব অসহায়ের মধ্যে রাস্তা কাটছি। কতজন শিল্পী ছিল আপনাদের এখানে? আমরা এখানে বর্তমান 25 জন আছি। ড্রাইভার খালাসি সব ছিল, সব মিলিয়ে? হ্যাঁ, সব মিলিয়ে 28 জন নাকি? 28 জন। কি নাম আপনার? বনবিহারী দাস। এখানে কি পদে রয়েছেন আপনি? আগে এখানে কি হিসেবে রয়েছেন? আমি শিল্পীও এবং ম্যানেজমেন্ট, শিল্পী এবং দলের ম্যানেজমেন্ট।
पहले आगे ट्रक चल रहा, पीछे में चल रहा था। अच्छा। उसके भैंस आ गया ट्रक के सामने, हाँ भैंस को लगा है ट्रक से, हाँ। उसने ब्रेक किया, हम भी ब्रेक कर लिए। पीछे से बस वाला आगे ठोक दिया ट्रक मैंने वाला। आपको पहले दबाया क्या? आपको धक्का मारा बस हाँ, वाला? हमको धक्का मार के वो चढ़ा ऊपर। और आपको धक्का मार के? हाँ, ना ट्रक को लगा ना हमको लगा था भैंस से। ट्रक वाला निकल गया, हम भी जैसे निकले वैसे ही आके पीछे से मार दिए। तो भैंस को कौन मारा? ट्रक हाँ ट्रक तो निकल गया। ट्रक निकल गया। हम भी निकल रहे थे, तो पीछे से आके मारा है। गाड़ी का तो स्पीड नहीं है, उसका स्पीड था, मारा कस के। हम तो ब्रेक लगा लिए थे। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं दुर्गापुर से श्याम सेल जमुरिया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार कटियार। अरविंद कुमार कटियार। छठ पूजा के दौरान बराकर नदी में अंकित मिश्रा नाम के एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। इसी संदर्भ में आज कुल्टी रांची ग्राम पार्टी कार्यालय में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक बैठक की गई। यह बैठक अंकित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि डीएम को कंप्लेन किया गया है कि उस दिन पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की भूमिका की जांच की जाए, साथ ही उसके परिवार को मुआवजा दिलवाना हमारा दूसरा निर्णय है। इसके अलावा आपस में फंड रेज करके उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी। एक सांगठनिक काम, जो संगठन में जो लोग जिम्मेदारी में होते हैं, सांगठनिक काम कैसे होता है वो पार्टी समाज सेवा में करवाती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो कुछ भी घटित होता है उस पर हमारा रिएक्शन क्या है। अच्छा होने पर पॉजिटिव रिएक्शन, बुरा होने पर, गलत होने पर उसका प्रतिवाद। ये भी कहीं न कहीं जनाधार बढ़ाने में या जनाधार घटाने में एक राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और दूसरा बात है कि इससे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक कुछ अन्याय हुआ, उसका आपने प्रतिवाद किया, तो एक अन्याय का प्रतिवाद किया, इसका समाज को एक लाभ पहुंचता है। और कहीं ना कहीं आपको एज ह्यूमन बीइंग आप भी थोड़ा बेटर बन जाते हैं। आपको भी थोड़ा मन में शांति लगता है, ये गलत चीज हो रहा था मैंने इनसे रोक, ये फीलिंग भी आता है। ये जो घटना घटी हम लोगों ने फील किया कि पहला छठ के पहले ही हम लोगों ने कहा था कि जितना ये चाहे पुलिस हो, चाहे डीएम की ओर से हो, चाहे कॉर्पोरेशन की ओर से हो, जितना घुमा घुमी घाट में हो रहा है, खाली फोटो खींचने के लिए हो रहा है, काम कहीं कुछ नहीं हो रहा। और काम यदि सही में हुआ होता तो ये घटना नहीं घटती। दूसरा बात है कि अमानवीय रूप पुलिस का। और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा पुलिस ने क्यों किया। पुलिस ने इसलिए ऐसा किया कि यदि उसका पोस्टमार्टम वगैरह हो जाता तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ता। उसका लेकर के जस्टिस फॉर अंकित के तहत ही हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, और दो निर्णय लिया गया कि ऑलरेडी हम लोग डीएम को कंप्लेन किए हैं कि पुलिस की उस दिन जो भूमिका रही और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भूमिका रही, इसका जांच किया जाए। दूसरा हम लोग का मांग है कि उसको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा जो हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग अपने स्तर पर भी, जो लोग भी आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हैं, वो लोग अपने स्तर से भी हम लोग कुछ फंड रेज करके उस परिवार के साथ हम लोग रहें। यही तीन निर्णय हम लोग लिए हैं। इसी के तहत आज बैठक किए और हम लोग जनता से भी अपील करेंगे कि इस मुद्दे को और उठाया जाए। जस्टिस फॉर अंकित इसका प्रचार और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि जन दबाव बने, जिससे कि प्रशासन बाध्य हो जाए उस परिवार के साथ खड़ा होने। इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दोषी मैं पूरा प्रशासन को मानूंगा, जिन लोगों ने छठ का अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया। छठ के पहले ही हम लोगों ने कहा था कि जितना घाट में घुमा जा रहा है ये केवल दिखावा हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी भोजपुरी में उस दिन आके बड़ा भाषण दिए हैं। छठ में एक आदमी मर गया, उसके घर जाने का समय नहीं मिला। एमपी है ना, छठ के दिन ही घटना घटी ना, थे ना, रास्तों में थे ना, एक बार भी जाने का समय नहीं मिला उनको उसके यहाँ। इतने बड़े बड़े नेता मंत्री सारे लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, किसी को भी जाने का मौका नहीं दिया। प्रशासन का कोई आदमी उसके घर नहीं गया, चाहे डीएम बोलिए, पुलिस कमिश्नर बोलिए, एसीपी बोलिए, डीसी, कोई गया? एक आदमी उसके घर गया कि नहीं भाई ये हम लोग आपके साथ हैं? तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया गया। तो पहले दिन यदि मीडिया इस खबर को नहीं छापा होता, मीडिया से हम लोग को पता चला, फिर हम लोग अपने स्तर पर हम लोग इस मामले को तो दबाने का प्रयास किया गया। और बेचारा इनोसेंट फैमिली क्या करेगा? वो शोक में डूबा हुआ परिवार, ये लोग सोचे कि डर से कोई कुछ बोलेगा नहीं, मामला शांत हो जाएगा। पता नहीं अतीत में कितना इस तरह का मामला शांत कर दिया गया है।
हम लोग को जैसे पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई है, मगर उसके पास जो डॉक्टरी कागज दिया गया उसमें लिखा गया है उसका हाई प्रेशर हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं है। हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं है। हम लोगों ने पुलिस से राइट टू इंफॉर्मेशन में ये सूचना मांगी है। पहला प्रश्न हम लोगों ने पूछा कि 19 तारीख को अंकित मिश्रा की अस्वाभाविक मृत्यु हुई कि नहीं। दूसरा हम लोगों ने पूछा कि अस्वाभाविक मृत्यु पर जो केस होता है यूडी केस, वो आपने स्टार्ट किया कि नहीं। तीसरा हम लोगों ने पूछा कि पोस्टमार्टम कराया कि नहीं। इसका जवाब पुलिस दे। किसके पास क्या कागज है नहीं है मुझे मालूम नहीं। पुलिस को तो ये तीनों जवाब देना पड़ेगा ना। पुलिस ये तीनों जवाब दे। इस बात देखते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सीमांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। स्पेशल ओकेजन्स के लिए करना हो बुकिंग या फिर आसनसोल में कर रहे हो आप स्टे, तो राज राजेश्वरी होगा आपका बेस्ट चॉइस, क्योंकि यह है लॉज कम मैरिज हॉल विद रेस्टोरेंट, जहां इंडियन, चाइनीज और तंदूरी आइटम्स अवेलेबल है। An exceptional and elegantly decorated hall with the touch of Roman heritage, great hospitality, better cleanliness के साथ पाए well furnished room। इसके अलावा beautiful rooftop garden just for your family occasions। खास शादी के लिए मंडप, सिंहासन सहित अन्य की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है अंडर बजट के साथ ही। यह है जीटी रोड के ठीक किनारे। पूरा एड्रेस है कुमारपुर नियर मनोज सिनेमा हॉल। आज ही विजिट करें राज राजेश्वरी। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए। 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली।
चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा, तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। আমাদের মূর্তি, তারপর আমাদের জেনারেল ম্যানেজার সাহেবের প্রত্যেকটা প্রতিযোগিত হবে। প্রত্যেক যারা আছে অতিথি আছে প্রত্যেককে অনুরোধ করবো जिसका दवाई अपना लो करो, जिसका इसका अपना करो, कोई यहाँ पर असुविधा नहीं है, लेकिन वो अपना आदत छोड़ दे। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ऑथराइजेशन है, आप एजेंटी कीजिए। साउथ बंगाल में उसका सरदार उसी से चलता, लेकिन अगर उस एजेंट से अगर कोई बोलता है आपको तुमको पैसा देना होगा, यहाँ तुमको एजेंटी पास करता ही नहीं करेंगे। और इसी का खमियाजा था कि दो लोगों को दुर्नीति के टाइम में इन्वेस्टमेंट से आए हैं कि आप जो है यहाँ पर किस तरह से श्रमिकों को, इसलिए श्रमिक के साथ कोई भी अन्याय करेगा तो तृणमूल कांग्रेस की महापार्टी की सरकार है, यहाँ पर जो है हमारा महत्व आपत्तिजनक है। इनका सख्त निर्देश है कि किसी को भी बस स्टैंड अगर कोई भी पार्टी के श्रमिकों को हम लोग जानकारी नहीं है
कि आप जो है लोगों के हित में काम कीजिए, जो उनके साथ काम कीजिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करिए और बस स्टैंड में किसी भी तरह का बीच में हमारे इंडियन के प्रति गलत धारणा जाए। तो इसलिए हमने बैठक बुलाया है और हम लोग कुछ निर्देश भी दिए हैं कि हमारे जो भी है उनको एक बात सोच के रखना। 9% INTUC का मेंबर है, कुछ बीजेपी के दलाल हैं यहाँ, कुछ CPM के दलाल हैं जिनका कुछ बोलिए। ठीक है, तो मोटा मोटी आप लोग हम यहाँ पर आप लोग सब आए, खाली इतना बोलेंगे निर्भय होकर काम कीजिए, आराम से काम कीजिए। पार्टी का संगठन का जो प्रोग्राम है उसमें हाजिर होइए। अगर किसी से कोई आपको तकलीफ है तो उसका तुरंत बैठकर ऑफिस। आज हम लोग का सब पर्व खत्म हो गया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा जो भी था इसमें सब व्यस्त था लोगों की सेवा करने में। तो आज से हम लोग बैठक शुरू किए हैं। हम लोग बस स्टैंड को सुंदर से सजाने का चेष्टा कर रहे हैं कि बस स्टैंड को सुंदर से सजाया जाए। और हम लोग विशेष करके जो लोग यहाँ तुलाबाजी करते हैं, जो लोग बीजेपी व कांग्रेस व CPM के साथ हाथ मिला के यहाँ पर जिनका कोई संगठन नहीं है, वो यहाँ पर अगर आकर बस स्टैंड में अगर आकर डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, तो उस पर हम लोग कल से नज़र रखेंगे। क्योंकि अब सब त्यौहार खत्म हो गए हैं। और दूसरी बात है, उनको सोचना होगा कि यहाँ पर महामाटी मानुष की सरकार है और हमारा मजदूर नेता मौलाई घटक है और हम श्रमिक नेता हम लोग अभिजीत घटक है। उनका सख्त निर्देश है कि सब श्रमिक जो है उनको रोजगार मिले, वो शांति से रहें। उसके साथ साथ बस स्टैंड का परिवेश साफ सुथरा रहे। तो बस स्टैंड का परिवेश साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग कल से स्पेशली नज़रदारी करेंगे। और जो लोग अगर गलत तरीक़े से कांग्रेस बस INTUC और वह C2 व बीजेपी के नाम से अगर यहाँ पर कुछ लोग अगर अशांति फैलाने की चेष्टा करेंगे तो हम लोग उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 99% संगठन का जो मेंबर है सब INTUC तृणमूल कांग्रेस का सदस्य है। और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के नाते हम लोग ये बोल देना चाहते हैं कि कोई भी वर्ग श्रमिक अगर यात्री के साथ या किसी भी श्रमिक के साथ या किसी भी तरह का कोई भी किसी से अभद्र व्यवहार करता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों के साथ मिलकर रहना है और महामाटी मानुष का जो नाम है उसको हमेशा ऊंचा रखना है, साफ सुथरा रखना है। यही हम लोग वर्कर को हिदायत देने के लिए बैठक की। थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2 नेता को यहाँ से हटाया गया था, जबरन इसीलिए बता रहे हैं। वो 2 नेता कौन थे? मैं बता रहा हूँ। इसके पहले यहाँ पर असीम मित्र बच्चू, सारे लोग जानते हैं कि ये असीम मित्र बच्चू जो था यहाँ पर वो प्रत्येक गाड़ियों से पैसा उठाता था सुबह से लेकर शाम तक। उसका काम था, वो एजेंट जितनी बसें थी प्राय सब गाड़ी में उसकी एजेंटी थी। हर गाड़ियों में बोलता था ये मेरा बस है। वो बुकिंग एजेंटी भी करता था, प्लस यूनियन के नाम से चंदा भी उठाता था, जबकि यूनियन से कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ साथ वही असीम मित्र बच्चू ने आसनसोल नगर निगम बोर्ड जो कि तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड था उसका 18,650,000 रुपये गबन कर लिया था, जिसमें वो जेल भी गया था। उसके बाद वो जेल से छूट के आया। उसके बाद बहाल तबीयत में बस स्टैंड में आकर वो जो है तुलानी उठाता था, जिसको पार्टी के नेतृत्व ने जो है तुरंत तत्काल कराया करते हुए उन लोगों दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। विनोद पांडे एवं असीम मित्र बच्चू, इनको बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद उनको जो है दुर्नीति की सजा के लिए जो है हमारा दल ने बता दिया कि किसी भी दुर्नीतिग्रस्त का कहीं पर भी तृणमूल कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और हम लोग यही चीज़ चाहते हैं, श्रमिकों को बोलना चाहते हैं, आप एकदम खुलेआम खुले तबीयत से काम कीजिए। किसी को 1 रुपया देना नहीं है, कोई चंदा के नाम की यहाँ राजनीति नहीं है। जब से हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट एक INTUC 1 नंबर का दायित्व लिया है, तब से आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन बस स्टैंड में कभी आपका जो है स्वच्छ कैंप हो रहा है, कभी आंखों का चेकअप हो रहा है, चश्मा बिली हो रहा है, हर प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन कोई चंदा हम लोग यहाँ पर से उठाने किसी को नहीं देते हैं। और यही हिदायत हम लोग दिए हैं, कोई भी तुलाबाजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का संगठन है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।